Hello everyone, welcome to my channel Dr. APJ Abdul Kalam Academy. So we are going to study about birds, okay? That is related to environmental studies, okay? So let us start with this. Now children, what you have to do is you have to just circle the birds in the following collage. So what we have to do is we have to observe these pictures and then circle it. So first picture is of pigeon. So pigeon is the name of a bird, right? तो हमने क्या किया, उसको circle किया, ठीक है? अब हमें second क्या दिख रहा है? We can see fish. So fish is not a bird. So that's why we will not put a circle. Then next is sparrow. अब sparrow तो एक bird होती है ना? तो इसलिए क्या करेंगे, हम उसको circle करेंगे, ठीक है? Then here we can see the picture of crow. So we'll put a circle. Why? Because crow is a bird. Now it is the picture of lion. So lion is a bird? No, it is not. So we'll not put a circle. Another picture is of parrot. So of course parrot is a bird, right? Then another picture is of frog. So frog is not a bird, isn't it? Then last picture is of peacock. Peacock is a bird, okay? So if you get up early in the morning, you can hear the chirping of little creature sitting on the branches of trees. These little creature are the birds. तो जब भी हम सुबह उठते हैं तो हम क्या सुनते हैं कि कोई तो चर्प कर रहा होता है, कोई तो चू चू कर रहा होता है ना? तो कौन होते हैं वो? ये जो creatures होते हैं उनको हम कहते हैं birds. So the birds are one of the most beautiful animals on earth. Every day we see many different kinds of birds around us, like the parrot, crow, sparrow, pigeon, and myna. They may be flying in the sky, pecking and hopping around, or perching on a tree. तो birds जो होते हैं वो क्या है? Most beautiful animal है हमारी earth पर. तो एवरी डे मतलब कि हर दिन हम क्या देखते हैं? बहुत तरह के बर्ड्स देखते हैं, है ना? जैसे कि पैरट है, क्रो है, स्पैरो है, पिजन है, या फिर मैना होती है ना? सो दे मे बी फ्लाइंग इन द स्काई. वो आसमान में उड़ सकते हैं, पैक पैक कर सकते हैं, हॉपिंग मींस जंपिंग कर सकते हैं, और ट्रीज पर यहाँ वहां घूम भी सकते हैं, ठीक है? देखो ये जो पैरट है वो कैसे घूम रहा है. तो वैसे ये जो बर्ड्स है सारे क्या करते हैं? वो बहुत ही सुंदर एनिमल है हमारे अर्थ पर, है ना? तो जो बर्ड्स है बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है? तो ये जो सारी एक्टिविटीज है बर्ड्स कर सकते हैं. सी हाउ ब्यूटीफुल दे आर. वाओ, ब्यूटीफुल. So these are the types of birds. Okay, what you have to do is observe them carefully. Do they like some trees more than the others? Trees provide the birds with all their basic needs for survival, like food, shelter, and nesting. Some birds, like the parrots and sparrows, are also kept as pets in the houses. तो क्या करना है आपको? इन्हें ऑब्जर्व करना है अच्छे से, और आपको देखना है कि क्या ये जो बर्ड्स हैं उन्हें ट्रीज के अलावा और कुछ पसंद है. तो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कहाँ पर रहते हैं? वो ट्रीज पर ही रहते हैं. तो ये जो ट्रीज है वो उन्हें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? ट्रीज उन्हें सारी उनकी जो बेसिक नीड है वो कंप्लीट करते हैं, लाइक फूड है, शेल्टर है, या फिर नेस्टिंग है. तो बर्ड क्या करते हैं? दे मेक अ नेस्ट ऑन द ट्रीज. सम बर्ड्स लाइक द पैरट्स एंड स्पैरोज, मींस कुछ ऐसे बर्ड जैसे कि अभी देखो पैरट है या फिर स्पैरो है, तो वो एज अ पेट भी हम उन्हें घर में रखते हैं. तो हमें क्या दिख रहा है कि some birds like the parrots and sparrows are kept in the houses. So you can see, right? We also have seen so many videos about the parrots and sparrows. So what do? They love us, they do care for us, but if we will care, they will also love and care for us. Okay, now see what a funny picture, isn't it? ये पैरट क्या कर रहा है? वो बॉल से खेल रहा है, और ये जो 3 पैरट है उनको एनिमेट करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये इतने प्यारे हो सकते हैं. अब देखो ये जो पैरट है वो तो सो रहा है, और उसको क्या हो रहा है? उसको
ठंड लग रही है ना, तो हमने क्या किया, उसको चादर उड़ा दी। कॉमन फीचर्स ऑफ बर्ड्स, अब हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि जो सारे बर्ड्स होते हैं उनके कॉमन फीचर्स क्या क्या है। तो ऑल बर्ड्स ले एग्स, मीन सारे बर्ड्स ही अंडे देते हैं। दे हैव अ बीक एंड 2 legs, उनकी एक चोंच होती है और 2 पैर होते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 4 toes ऑन ईच फुट, जो मोस्ट ऑफ दी बर्ड्स होते हैं उनके 4 उंगलियां होती है पैरों की, ठीक है। तो बर्ड्स हैव स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई, बर्ड्स के पास गॉड ने ऐसा एक स्पेशल फीचर दिया है जिसकी वजह से वो उड़ सकते हैं। दे हैव विंग्स, feathers and boat shaped, streamlined the light bodies with strong hollow bones। तो ये जो birds हैं उनको गॉड ने क्या दिए हैं, विंग्स दिए हैं, पंख दिए हैं, फेदर दिए हैं, ठीक है। और वो कैसे होते हैं, बोट की शेप में होते हैं। उनकी बॉडी जो वो है वो लाइट होती है। एंड द बोन्स दे हैव दोज आर हॉलो, हॉलो का मतलब क्या होता है, खोखली, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ अ बर्ड्स बॉडी, तो बर्ड की जो बॉडी होती है उसके पार्ट्स क्या क्या है, देखो ये जो है, ये जो हमें दिख रहा है ना, व्हाट इज इट कॉल्ड, इसको हम कहते हैं बीक। ओके, नो दिस वन, these are called as flight feathers, these are called as wings, these are called as down feathers, these are called as tail feathers, these are called as feet। So these are the parts of a bird's body। Okay, so the aeroplane was invented based on how birds fly। तो साइंटिस्ट ने क्या किए थे कि उन लोगों ने रिसर्च किए थे कि ये जो बर्ड्स है ये उड़ते कैसे हैं, तो उन्होंने उस पर रिसर्च करके एरोप्लेन को इन्वेंट किया था साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो ऑल बर्ड्स हाउएवर कैन नॉट फ्लाई, सारे के सारे बर्ड्स उड़ नहीं सकते। बर्ड्स लाइक द ऑस्ट्रिच, कीवी एंड पेंगुइन आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। अब जैसे कि बर्ड्स है, देखो ऑस्ट्रिच है, कीवी है, पेंगुइन है, वो फ्लाइटलेस बर्ड्स है, मींस वो उड़ नहीं सकते, बट दे कैन वॉक, हॉप, रन और स्विम। लेकिन वो क्या कर सकते हैं, वो वॉकिंग कर सकते हैं, हॉपिंग कर सकते हैं, रनिंग और स्विमिंग भी कर सकते हैं। सो द ऑस्ट्रिच इज अ वेरी फास्ट रनर, ऑस्ट्रिच एक ऐसा बर्ड है जो कि बहुत फास्ट भागता है। सो द अनदर वन इज पेंगुइन, द पेंगुइन यूजेस इट्स विंग्स फॉर स्विमिंग रादर देन फ्लाइंग। तो ये जो पेंगुइन है वो क्या करता है, वो अपने जो पंख है उनको स्विमिंग करने के लिए यूज करता है। Now children, there is an activity for you. What you have to do is you have to unscramble the names of the birds shown below. So this is a picture of that bird. Yes, the first one is NPEGIO. So what is it? Pigeon. Okay, and here it is GALEE. Which bird is it? Yes, it is eagle. So feathers, feathers, birds are the only animals that have feathers। अब देखो ये तो कॉमन चीज है कि जो birds होते हैं उनको ही क्या होते हैं, feathers होते हैं, मतलब पंख होते हैं। इंसानों को कहाँ होते हैं पंख, है ना। या फिर जो हमारे एनिमल्स होते हैं, wild animals, pet animals, like wild animals like lion, elephant, they are not having feathers or wings, right? So only birds have feathers। Apart from flying, feathers help the birds in many other ways। Means ये जो feathers है वो birds को कई तरीके से help करते हैं। Feathers give the bird's body its shape and color। Means ये जो feathers है उस bird को shape और color provide करते हैं। We can identify a bird with the help of its unique feathers। Of course, हम क्या करते हैं, वो जो bird का unique feather है उसकी ही help से उस particular bird को identify करते हैं। Birds with their feathers. These are the birds with their feathers. Feathers help to keep the bird warm and dry। For example, a penguin's feathers keep it warm even when swimming in ice cold water। अब ये जो feathers है वो क्या करते हैं, इन birds को warm और dry रखते हैं। अब जैसे कि देखो penguin क्या है, penguin के जो feathers है वो उसको गर्म रखने के लिए और स्विमिंग के लिए भी हेल्प करते हैं।
हालांकि वो कहाँ पर स्विमिंग करता है, आइस कोल्ड, मतलब जैसे कि बर्फ का पानी होता है ना, वैसे पानी में वो स्विमिंग करता है पेंगुइन। ठीक है, देखो देखो किस तरीके से वो स्विमिंग कर रहा है। Now, sometimes the color of the feathers help the bird to hide from its enemies. Enemies मतलब क्या, जो कि उनके दुश्मन होते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये जो बर्ड्स हैं उनके फेदर्स गॉड ने इस तरीके से बनाए हैं कि वो ये जो ट्रीज या फिर लैंड पर इस तरीके से छिप सकते हैं कि वो जो फेदर्स है उसकी वजह से वो उनके एनिमीज को, मीन्स जो उनके शिकारी होते हैं, दुश्मन होते हैं, उनको दिखाई नहीं देंगे। Every day, the birds tidy and clean their feathers with their beaks. This is called preening. तो आपको दिख रहा है ना पिक्चर्स में, देखो कैसे वो जो बर्ड्स है वो अपनी बीक की हेल्प से कैसे अपनी बॉडी को साफ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं preening. This is called as preening. From time to time, they shed their old feathers and grow new ones in their place. This is called molting. अब टाइम से क्या हो जाता है कि ये जो बर्ड्स के फेदर्स हैं वो शेड होते हैं, मतलब कि झड़ते हैं, और उसकी जगह पर ही नए वाले फेदर्स आ जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज मोल्टिंग। इसको हम क्या कहते हैं, मोल्टिंग। सो व्हाट डू बर्ड्स ईट, मींस ये बर्ड्स क्या क्या खाना खाते हैं। बर्ड्स नीड्स प्लेंटी ऑफ फूड टू गेट एनर्जी फॉर फ्लाइंग। जैसे देखो अभी हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं, है ना, तो वैसे ही ये जो बर्ड्स है उन्हें भी खाना चाहिए उड़ने के लिए। They have a sharp eyesight and they use it to find food. They use their beak and claws to eat the food. Means अगर बर्ड्स को खाना खाना या फिर शिकार करना है तो उनकी जो आईसाइट होती है ना, मतलब जो नजर होती है वो बहुत शार्प, मीन्स बहुत तेज होती है। एंड दे यूज इट टू फाइंड फूड, और वो अपनी आंखों को क्या यूज करते हैं, वो अपना खाना ढूंढने के लिए अपनी आंखों का यूज करते हैं। They use their beak and claws to eat the food. Means वो क्या करते हैं, अपनी beak और जो claws होते हैं, मीन्स जो पंजे होते हैं उनके पैरों के, उसको यूज करते हैं खाना खाने के लिए। देखो किस तरीके से ये जो पैरट्स है और पिजन्स है वो क्या कर रहे हैं, they are using their beaks to eat the food. See the sparrow, see look at these sparrows, what are they doing, they're enjoying, right? Now let us understand the different birds, okay, and the types of beaks. The different birds have beaks of different shapes depending on the kind of food they eat. Means बच्चों ऐसा होता है कि अलग अलग birds के अलग अलग beaks होते हैं। किसके हिसाब से, वो जिस तरीके का खाना खाते हैं उसके हिसाब से उनके बर्ड ने beaks बनाए हैं, मतलब चोंच बनाई है। तो the hummingbird has a long, thin and tubular beak for sipping nectar from flowers. तो ये जो बर्ड है इसका नाम है हमिंग बर्ड। इसकी जो चोंच है वो कैसी है, देखो, इट हैज अ लॉन्ग, बहुत लंबी है, थिन, बहुत ही पतली है, ट्यूबुलर मींस ट्यूब वाले शेप की है ना, ताकि वो क्या कर सके, वो सिप कर सके, मींस वो चूज सके नेक्टर, मींस नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स, जो फूलों का रस होता है ना, तो वो उसका खाना है। तो ये जो उसकी ट्यूबुलर बीक है, it helps the hummingbird to sip nectar from flowers. See how is it sipping nectar from flowers? तो ये जो उसकी बीक है वो उसको इस तरीके से अपना खाना खाने के लिए हेल्प करती है। The sparrow. The sparrow finds it easy to pick up grains and worms with its short and conical beak. तो ये जो स्पैरो है उसकी बीक कैसी होती है, कोन शेप में होती है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, इट इज इजी, मतलब वो उसके लिए आसान है ताकि वो अपनी जो ग्रेन्स या फिर वर्म्स है आसानी से उन्हें खा सके। द काइट, अब ये जो बर्ड है इसका नाम है काइट, ठीक है। तो द काइट हैज अ स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक दैट हेल्प्स इट to tear the flesh of small animals it eats. तो जो काइट बर्ड है उसकी भी ये जो बीक है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प मतलब बहुत नुकीली होती है, तेज होती है, एंड हुक्ड बीक मींस ये हुक वाले शेप की होती है। हुक कैसा होता है बच्चों,
इसको हम हुक बोलते हैं, बराबर। घर में जो हम चीजें टंगाते हैं ना, ठीक है, तो वो जो हुक होता है, तो इसकी बीक काइट की वो हुक जैसी ही है, देखो, ठीक है। तो वो क्या हेल्प करती है उसको, वो उसको फ्लैश मीन्स जो एनिमल्स का मांस होता है उसे टेयर करने में, मतलब के फाड़ने में और खाने में हेल्प करती है। See, look at the beak. Oh, it looks. See how is it eating the flesh of small animals. ऐसे लग रहा है जैसे कि वो मुझे खा जाएगा अभी। अब ये है द आउल। आउल के बारे में क्या खास बात पता है आपको? यस, डू यू नो समथिंग डिफरेंट अबाउट आउल? आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में डाल के रखोगे, ठीक है। तो द आउल यूजेस इट्स शॉर्ट एंड कर्व्ड बीक टू हंट रैट्स एंड माइस एट नाइट। तो ये जो आउल है वो क्या करता है, वो जो एनिमल्स है उनको रात में हंट करके, मतलब उनका शिकार करके उन्हें खा लेता है। तो उसकी जो कर्व बीक है वो उसे हंट करने में यूज हेल्पफुल होती है। देखो ये कैसे आउल खा रहा है ना एनिमल्स, रैट्स को। देखो कैसे उसने उसको अपने चोंच में पकड़ के रखा है। Now the beautiful bird, it comes parrot. The parrot uses its curved beak to break open and eat a variety of fruits and nuts. ये जो पैरट है वो क्या करता है, वो अपनी कर्व बीक को यूज करता है ताकि वो ये जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें ब्रेक कर सके और वैरायटी ऑफ फ्रूट्स और नट्स खा सके। देखो कैसे वो फ्रूट्स खा रहा है, और वो फ्रूट कौन सा है, ऑरेंज है, ठीक है। वाओ। अब ये है स्टॉक। द स्टॉक यूजेस इट्स लॉन्ग स्पेयर लाइक बीक टू कैच फिश। अब ये स्टॉक जो है वो क्या खाता है, वो खाता है फिशेस। देखो कैसे वो अपनी लॉन्ग बीक को यूज कर रहा है फिशेस खाने के लिए। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट साउंड्स ऑफ बर्ड्स। व्हाई डू बर्ड्स चर्प? ये बर्ड्स चर्पिंग क्यों करते हैं, मतलब चू चू क्यों करते हैं? द बर्ड्स मेक साउंड्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। मीन्स जैसे हम इंसान बातें करते हैं ना, वैसे ही ये बर्ड्स भी क्या करते हैं, बातें करते हैं। और वही साउंड वो यूज करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। द साउंड मेड बाय बर्ड्स इज कॉल्ड द बर्ड कॉल और सॉन्ग। ये हमारा वाला कॉल नहीं है, तो ये कॉल कौन सा है, ये जो साउंड है जो बर्ड्स क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कहते हैं बर्ड कॉल और सॉन्ग। बर्ड का सॉन्ग बोल सकते हैं या फिर बर्ड कॉल भी बोल सकते हैं। सो दीज कॉल्स कैन बी फॉर मेनी रीजंस। ये जो कॉल्स है वो बहुत सारे रीजंस के लिए हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, लाइक इम्प्रेसिंग एंड अट्रैक्टिंग देयर पार्टनर्स, और मेड warning others about dangerous or notifying their friends if they find food. अब ये जो birds है उनका chirping किस लिए यूज करते हैं, ताकि वो अपने अपोजिट पार्टनर्स को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है, और वो वार्निंग दे सके। समझो कि अगर ये बर्ड ट्री पर बैठा है ये वाले, और यहाँ पर उसको दिख रहा है कि अरे यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ है, तो वो क्या करेगा, वो चर्प करेगा, इट विल प्रोड्यूस साउंड, एंड बिकॉज ऑफ दैट साउंड another bird will get notified about the danger in that particular area. Or even they also use this chirping to find food. Means वो खाना ढूंढने के लिए भी chirping को यूज करते हैं, अपना साउंड यूज करते हैं। Some birds like the nightingale and cuckoo quail sing beautifully. Parrots and manners mimic sounds. तो ये जो बर्ड जैसे कि नाइटिंगेल और कुकू है वो क्या करते हैं, बहुत ही प्यारा गाते हैं। जैसे कि देखो अब जो कोयल है वो कैसे करती है, कू कू ऐसे करती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको उसकी सिंगिंग बोलते हैं, कुकू की सिंगिंग बोलते हैं। और ये जो पैरट्स है वो क्या करते हैं, वो साउंड मिमिक करते हैं। आपने देखा होगा ना कई सारे वीडियोस में कि पैरट्स जो है वो जो इंसान वो बोलता है पर्सन, वो उसको रिपीट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज मिमिक्री। तो पैरट्स क्या करते हैं, मिमिक करते हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट माइग्रेटरी बर्ड्स। सम बर्ड्स fly long distances
every year to escape the extreme cold conditions of winter in their native place. अब ये जो कुछ कुछ बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर फ्लाई करके जाते हैं. क्यों जाते हैं? ताकि जहां पर वो रहते हैं और अगर वहां पर ठंडी का मौसम आने वाला है तो वो उस प्लेस को एस्केप करते हैं. बिकॉज ऑफ टू इफ दे वांट टू सेव देयर लाइफ सो दे हैव टू गो, otherwise they cannot survive in that particular condition or weather. So they go to warmer places that are rich in food and are safe for breeding. Means वो कहाँ पर जाते हैं, ये जो वर्ड्स है वो जो वार्म प्लेसेस होते हैं, मीन्स जो गर्म प्लेसेस होते हैं वहां जाते हैं और जहां पर अच्छा खाना हो और उनकी ब्रीडिंग के लिए भी वो अच्छा हो. So once the conditions are favorable in their native places, they return. तो जब ये जो वेदर्स है वो चेंज होते हैं तो क्या होता है, वो जो बर्ड्स है जो माइग्रेट कर गए थे वो अपनी प्लेस पर वापस आ जाते हैं. This seasonal movement of birds every year is called migration. तो अकॉर्डिंग टू सीजन, सीजन के हिसाब से जो माइग्रेशन होती है ना बर्ड्स की, मीन्स जो यहाँ से वहां जाते हैं फिर वापस से उस प्लेस से अपने नेटिव प्लेस पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माइग्रेशन. उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन. ठीक है. So you can see how these birds are flying from one place to another. तो ये जो बर्ड्स है वो बहुत ही अच्छे से मैनर, लाइक जैसे हम इंसानों में मैनर्स नहीं होते हैं ना, ये एनिमल्स में बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है. वो क्या करते हैं, बराबर एक लाइन में उड़ते रहते हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई बर्ड का फ्लॉक है तो वो कैसे उड़ता है, बराबर ऐसे वी शेप में उड़ता है ना. सो वी ऑल्सो शुड फॉलो सम मैनर्स, राइट? Yes, so we have to be respectful to people and everybody around us, right? So these birds are called migratory birds. तो ये जो birds है जो यहाँ से वहां जाते हैं अलग अलग मौसम में, सीजन में, तो उनको हम कहते हैं migratory birds. For example, common teal, छोटी मुर्गाबाई. अब जैसे कि एक बर्ड है जिसका नाम है, इंग्लिश में उसको कहते हैं कॉमन टील और उसको मराठी में कहते हैं छोटी मुर्गाबाई. तो इट इज अ कॉमन माइग्रेटरी बर्ड कमिंग टू इंडिया. तो ये जो बर्ड जो है इसका नाम है छोटी मुर्गाबाई, कॉमन टील. ये कहाँ आती है, इंडिया में आती है और ये कॉमन माइग्रेटरी बर्ड है. So let us recall what all points we have studied. Birds are creatures with a beak, 2 wings, 2 legs and feathers. Means God gifted ये जो अर्थ पर ब्यूटीफुल एनिमल्स है बर्ड्स, वो कैसे क्रीचर्स है, उनके पास एक बीक होती है ना, उनको एक बीक होती है, 2 पंख होते हैं, 2 पैर होते हैं और फेदर्स होते हैं. Then birds are the only animals that have feathers. सिर्फ बर्ड्स ही ऐसे एनिमल्स है जिनके पास क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं. Birds have a beak instead of a mouth. तो जैसे कि इंसानों के पास मुंह होता है बोलने के लिए, खाने के लिए, है ना, तो जिसको हम माउथ कहते हैं, तो बर्ड्स को क्या है, उनके पास बीक होती है, चोंच होती है. बर्ड्स ईट सीड्स, फ्रूट्स, नेक्टर, इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स. मीन्स ये जो बर्ड्स होते हैं वो क्या क्या खाते हैं, वो सीड्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, नेक्टर मतलब फूलों का रस, इंसेक्ट्स खाते हैं और स्मॉल एनिमल्स को भी ये बर्ड्स खाते हैं. बर्ड्स यूज देयर कॉल और सॉन्ग्स फॉर मेनी पर्पसेस. ये जो बर्ड्स है उनका जो सिंगिंग है या फिर हम कहते हैं बर्ड्स कॉल, वो बहुत सारे रीजंस के लिए यूज करते हैं. जैसे कि रीजन क्या है अभी हमारा, what we have studied that if a bird wants to impress another opposite gender, so that bird will sing a bird song, okay? Or either if that bird want to notify another bird, so what will that bird do, it will chirp in a different manner so that another bird from the another part of that particular area will be notified about the danger. So here we are done with the topic birds from environmental studies. Thank you so much for watching my video. Please like, subscribe and share. Bye.